धोती खोलनी है तो खोलनी है। I never knew the entire program was going to be online. $500 billion, almost 3,500 to 4,000 crores came from US back to India. The university's website, they showcase a very cozy picture. जहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम कितना कमीशन जो एजेंट्स को जाता है। So this person is complaining that guaranteed admission at तो हेलो एवरीवन, कल मुझे मनित ने बुलाया HPS में जहाँ पे इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी। काफ़ी लोग शार्क टैंक से आए थे। बिकॉज ऑफ मनित आई गॉट टू मीट आदित्य बिरला, आई गॉट टू मीट राधिका गुप्ता, जिनसे इंटरेक्शन, जिनकी कॉन्फ्रेंसेज वर सो फुल ऑफ एनर्जी एंड amazing experience there. Thank you so much, Manit, for inviting me. Thank you for coming. Actually, Harnoor is very popular. We had like around 50 students come meet with him and like click pictures and everything. So that was he could have been one of the speakers. I was discussing this yesterday. Yeah. अभी हम हैं UPI Study के ऑफिस में, which is funded by Brown University, and today we will learn the business model and how it helps students. Here everyone. So we are actually also funded by State of Rhode Island. We have an office space here because of them. So UPS Study is an education board which has a goal and mission of making education more accessible for study abroad international students. Thank you. First of all, as an introduction, Manit is co-founder of UPI Study. इन्होंने पूरी study abroad industry समझी है and he has went through it and he can actually be the right person to expose that industry as well. इनको पता है कि जो agents इंडिया में बच्चों की हेल्प करते हैं एडमिशन के लिए, वो पीछे से कितनी कमीशन मिलते हैं हमारे सामने नहीं था। हमारे लिए पर्दे के पीछे होता था कि वो परसेंटेज लेते हैं, क्या लेते हैं। इन्होंने वो पूरा पर्दा हटा दिया एंड दे आर एक्सपोजिंग हाउ दिस $300 बिलियन मार्केट ऑफ स्टडी अब्रॉड इज एक्चुअली हेल्पिंग $1 बिलियन go back to India through agents and how they are manipulating you. Yeah. So thank you, Harnoor. So UPS Study came up with this new thing where we made a list public. Now every time you go to a study consultant in India, आप कोई भी एजेंसी ले लो, छोटी हो बड़ी हो, ठीक है, may you be going to Canada, may you going to US, आपको every single time they will give you a list of universities where they can help you go and they will say that we will not charge you anything. Sometimes charge भी करते हैं, double पैसा भी कमाते हैं, but all of these agents, all of these study consultants actually get up to 20-30% from your fees back in their pocket from universities. So universities want more students, universities को students चाहिए तो इसलिए they will give commission to agents and उस reason से कोई यूनिवर्सिटी या कोई गलत प्रोग्राम ज़्यादा कमीशन दे रहा है, राइट, एजेंट आपको मैनिपुलेट करेगा, कन्विंस करेगा, अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, हाउ कैन ही और शी यूज़ दैट एंड सेंड यू टू दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम and cash out 5 lakh rupees, 3 lakh rupees, 6 lakh rupees just from one student. और एट द सेम टाइम मैंने केसेस सुने हैं यूके और कनाडा में, अगर बच्चा जाता है उसको फोर्स किया जाता है कि तो 2 साल इस यूनिवर्सिटी में स्पेंड कर, मत विड्रॉ कर। उसको कहा जाता है कि स्कोप निकल जाएगा। तो ये भी क्यों करते हैं? क्या कैसे कमीशन वर्क करते हैं, आप समझाना। ओके, सो एवरी टाइम व्हेन यू विल एंटर अ यूनिवर्सिटी, जैसे लेट्स से आपने मार्च में किसी के पास गए कि हमको सितंबर के अंदर जाना है, आप सितंबर में जाओगे, वो कॉलेज एजेंट को कमीशन 3 महीने बाद देगा, ठीक है। सो द एजेंट डजंट वांट यू टू लीव, इफ़ यू लीव द एजेंट वोंट गेट एनी कमीशन, ओके। हाउएवर हम यूनिवर्सिटी से कि हम 14 डेज़ के बाद आपको रिफंड नहीं देंगे, राइट, उस केस में भी द एजेंट विल गेट सम पार्ट ऑफ इट, ओके। सो द लॉन्गर यू स्टे, the longer the agent keeps getting commission on every single year you are at that specific university. And ऐसा नहीं है कि ये सब बहुत छोटे छोटे colleges and universities दे रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी universities, renowned universities, जहाँ इंडिया की मेजॉरिटी लाइक स्टूडेंट्स जाते हैं, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया आर सो पॉपुलर, राइट, देयर इज Purdue University. I'm a graduate of, I did my bachelor's from Purdue as well. I didn't know that Purdue gives commission. वो तो बाद में जाके when I got in the industry, I got to know. But except some top Ivy Leagues, like we were at Harvard and Brown, right? Now I did my master's from both of those places. So वो नहीं देती हैं because they already have abundance of students. But anything about other than the top 50 universities, 30 universities, you will see majority of the universities are giving commissions. Wow. And it's really amazing of you, even though he went to all the top schools, जैसे Harvard, Brown, plus Purdue, like you were able to get an idea of all of this commission जो Indian students को manipulate किया जा रहा है, जिसके कारण आपने ये कैसे समझा and what was your motivation to expose it? जैसे ये UPI की वेबसाइट है,
ओके आप यहाँ टॉप पे स्कॉलरशिप्स टैब पे जाओगे, स्कॉलरशिप्स पे जाके हम आपको बताते हैं कि इफ़ यू अप्लाई थ्रू द UPI प्लेटफॉर्म वी आर एक्चुअली गवर्नमेंट फंडेड, वी आर गवर्नमेंट एक्रेडिटेड, तो हम ये सेम कमीशन आपको वापस दिलवा सकते हैं, ठीक है ना, जो एजेंट्स को ना जाए ताकि आपको आए। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज़ आप जाके 10 एजेंट से एडवाइस लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, यू जस्ट नीड टू टेल अस द प्रोग्राम एंड वी विल अप्लाई फॉर यू एंड गेट यू दैट। सो यू एंड टिल डेट इन 2023 we saved over $3.6 million of students, इतना ज़्यादा। and this year we are aiming 10,000 students, last year we did 5,000। तो यहाँ पे आपने जाना है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड रिफंड में, यहाँ पे आपको 2 लिस्ट मिल जाएंगी, एक तो है जनरल जिसमें कनाडा की यूनिवर्सिटीज़, UK की भी हैं, 2-3 US की भी हैं, बट US यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्पेसिफिक एक अलग 370 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम कितना कमीशन जो एजेंट्स को जाता है उतना रिफंड एक्चुअली आपको आ सकता है। इट इज़ अमेजिंग दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे इस लिस्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज से अगर बच्चे जाते हैं वहाँ पे $8,000-9,000 तक रिफंड जाता है। लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी, लेट्स से जैसे UC Irvine देख लो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो इतनी पॉपुलर है, इट टेक्स मैक्सिमम लाइक समटाइम्स $60,000 पर ईयर फ्रॉम स्टूडेंट्स। ऐसी बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग गिविंग आउट कमीशंस टू दीज एजेंट्स। अगर आप इस पे दूसरा सेक्शन देखो कनाडा का, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर जैसे कि शूलेस स्कूल ऑफ बिजनेस या कि यॉर्क यूनिवर्सिटी का पार्ट है ना वो, एग्जैक्टली। तो यॉर्क यूनिवर्सिटी देख लो, वहाँ की ये यॉर्क है ना, राइट, ये यॉर्क है, Yeah, that's York. और यॉर्क यूनिवर्सिटी इज गिविंग 15 to 18% कमीशन। Exactly. एंड ये एजेंट्स पीछे से भी ले रहे हैं और आगे से भी आपसे चार्ज करते हैं। Definitely. और आप देखो यार, you can see it this way, आपकी फ़ीस का अगर मैं आपको बोलूँ कि $4,000 तक आपकी पॉकेट में वापस आ सकता है, वाई वुड यू वांट टू गिव इट टू एन एजेंट? आप उस फीस को लोन के लिए यूज़ करो, आप उस फीस को रहने के लिए यूज़ करो, या जला दो, पर वो आपका पैसा है ना, आपके पास रहना चाहिए। वाई यू लेटिंग सम रैंडम पर्सन, रैंडम एजेंट टेक इट अवे फ्रॉम यू जस्ट बिकॉज दे आर यूजिंग एंड मैनिपुलेटिंग यू, बिकॉज आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है US यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कनाडा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, या जहाँ पे भी आप स्टडी अब्रॉड करना चाहते हो। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एट द सेम टाइम यार इंडिया की जो इंडस्ट्री है, मतलब जो भी लोग अभी कनाडा UK जा रहे हैं उनमें से 90% लोग एजेंट्स के थ्रू ही जाते हैं। आई थिंक US स्टूडेंट्स आर बिट अहेड ऑफ इट, वो खुद अप्लाई कर लेते हैं। कितने परसेंट आप बताना US के खुद करते हैं? एज ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस जो रिपोर्ट आई है 2022 की एक्चुअली, उसके अंदर इंडिया से 3,30,000 स्टूडेंट्स आए थे 2022 के अंदर इंटरनेशनल, ठीक है, एंड ये बैचलर्स और मास्टर्स को मिला के है। 3,30,000 में से एंटिसिपेटेड था कि अराउंड 60% स्टूडेंट्स हमारे स्टडी अब्रॉड एजेंट्स के थ्रू आए हैं, ठीक है। तो अगर आप उन 60% स्टूडेंट्स को इंटू लेट्स से कि $3,000 इंटू कमीशन भी अगर आप कर दो, दैट मीन्स $500 million, almost 3,500 to 4,000 crores came from US back to India, just study abroad agents का कमीशन, ठीक है। अब मैंने इसमें अभी तो कनाडा इंक्लूड ही नहीं किया। कनाडा इज़ नोन 90% स्टूडेंट्स कम थ्रू एजेंट्स, 90%। UK is pretty similar. Australia is becoming very popular in the pretty same space, when majority of the market is coming through the study abroad agents, ठीक है। और ये मार्केट इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड हो चुकी है ना, यू नेवर नो कि आप ट्रस्ट किस पे कर सकते हो, राइट, बिकॉज कोई गवर्नमेंट ऑथराइजेशन तो है नहीं। जो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन बॉडीज़ हैं जैसे कॉलेज बोर्ड हो गया या UPI स्टडी जो US एंड कनाडा के अंदर क्रेडिटेड है, हमारे ऑफिस US एंड कनाडा में, वी टॉक टू स्टूडेंट्स वर्चुअली, ठीक है ना, और एजेंट्स इन पर्सन। अब वो क्योंकि इंडिया के अंदर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है उनके ऊपर, राइट। अब कल को आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे, स्कैम करें, कुछ आपके साथ करें ना, आप उनको कोर्ट में लेके जा सकते हो ना, यू हैव एनी ट्रस्ट कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एंड ये जो 90% स्टूडेंट्स एजेंसी हेल्प लेते हैं, इस कारण लेते हैं कि इंडिया में माना जाता है कि हमारे करियर के लिए कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यू शुड हैव द राइट सोर्स। पीपल थिंक कि यार गोइंग थ्रू एजेंट्स इज लाइक गोइंग थ्रू द राइट सोर्स, टेकिंग द राइट गाइडेंस, करियर में कंजूसी नहीं करनी, एंड सो दैट स्टूडेंट एक अच्छी जगह जा रहा है। पर उन्हें नहीं पता कि एजेंट्स सारी जिंदगी मेजॉरिटी ऑफ टाइम दे आर इन इंडिया। उन्हें इतना एक्सपोजर नहीं है स्टडी अब्रॉड का जितना एक एक्चुअल स्टूडेंट लाइक मनत, जैसे लाइक मी और मे बी अदर स्टूडेंट्स इन अब्रॉड जिन्होंने पूरा साइकिल देखा है, वो दे कैन गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव। अब अभी एक कनाडा की भी रिपोर्ट आई थी कि कनाडा के जो स्टूडेंट्स हैं मेजॉरिटी कहते हैं कि यार जैसा प्रोग्राम लिखा होता है वेबसाइट पे कनाडा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वैसी रियलिटी नहीं होती। कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? यार ओके, कनाडा में ना 2 मॉडल्स हैं।
एक है कॉलेजेस का, एक है यूनिवर्सिटीज़ का, बोथ आर वेरी डिफरेंट. ओके, कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ डिप्लोमा करते हो, विच इज़ लाइक 2 ईयर प्रोग्राम या 1 ईयर डिग्री, नॉट अ डिग्री, थोड़ा डिप्लोमा और अ सर्टिफिकेट कोर्स. अब बिकॉज इट्स अ डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट लेस वैल्यू, तो ऑब्वियसली कॉलेज ज़्यादा कमीशन देता है. और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं राइट, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ कमीशन नहीं देती हैं, बट अब देना स्टार्ट कर दिया ओवर द ईयर्स, बिकॉज कॉलेजेस 4-5 हज़ार डॉलर दे रहे हैं रिटर्न के अंदर. अब एजेंट मार्केट ने क्या किया, एजेंट ने कहा यार 5,000 पर स्टूडेंट हमको वापस मिल रहा है, ठीक है, हम तो प्रमोट ही सिर्फ डिप्लोमा करेंगे. ये करते करते कनाडा में इतने स्टूडेंट्स डिप्लोमा के ऊपर आ गए दैट इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आना पड़ा कि फ्यूचर के अंदर आने वाले स्टूडेंट्स जॉबलेस होंगे. कोई कंपनीज तो हायर करेंगी नहीं डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, वो तो डिग्री स्टूडेंट्स को हायर करेंगी. तो कनाडा मेड अ रूल चेंज. कनाडा ने एक रूल चेंज कर दिया जिसके अंदर कहा कि अगर आप डिग्री के ऊपर आते हो, वी विल गिव यू वीज़ा प्रेफरेंस, वी विल गिव यू परमानेंट रेजिडेंसी बेनिफिट्स, कि आपको ऑलमोस्ट गारंटेड है इफ़ यू आर अ डिग्री स्टूडेंट. एंड उन्होंने उस हिसाब से सिस्टम को सेट किया कि अब आने वाले डिप्लोमा स्टूडेंट्स PR ले ही ना पाए. सो क्योंकि एजेंट मार्केट संभल नहीं रही है, ठीक है ना, बिकॉज इंडिया में कोई गवर्निंग है नहीं, और इंडिया में होगी भी क्यों, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली तो आप बाहर आ रहे हो. इसलिए वी ऑल्सो गॉट फंड्स, जैसे हमको भी गवर्नमेंट से फंड्स मिलते हैं कनाडा की, USA से, ताकि वो उन फंड से हम हायर करते हैं ताकि कनाडा का पैसा कनाडा के अंदर रहे, US का US के अंदर ही रहे, और वो पैसा एक्चुअली आप स्टूडेंट के पास वापस जाए. गवर्नमेंट को अपने पास नहीं वो कमीशन चाहिए. गवर्नमेंट इज़ लाइक गिव इट टू द स्टूडेंट, लेट द स्टूडेंट यूज़ इट फॉर देयर ओन पर्पस. उनकी स्टूडेंट लाइफ अच्छी होनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू हियर. एंड एट द सेम टाइम मैं एक वीडियो देख रहा था कि कॉलेजेस ऐसे भी मैनिपुलेट करते हैं कि उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है PR मिलेगी, स्टूडेंट जॉब्स मिलेंगी, वो बच्चों को जॉब करते करते दिखाते हैं. बट रियलिटी इवन इन एटलांटिक प्रोविंस, इवन इन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंस, जाकर वहाँ पर जॉब होती ही नहीं है. इनफैक्ट वहाँ के लोकल्स के लिए कुछ केसेस में कुछ ऐसी सिटीज़ होती हैं जहाँ के लोकल्स के लिए जॉब नहीं है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए को ऐसे प्रमोट किया जाता है आप आओ जॉब मिलेगी. See, you have to put it this way, okay? पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब्स में बहुत फ़र्क है. ओके, अगर आप एक ना, कॉलेजेस कैसे होते हैं, कॉलेजेस होते हैं कॉर्पोरेट बिल्डिंग में, बस एक फ्लोर का कॉलेज हो गया. यू वेंट टू यूनिवर्सिटी हेयर, आपने यूनिवर्सिटी में जॉब शायद से पार्ट टाइम की भी होगी, राइट. यू नो कि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी होती है, यू विल गेट अ जॉब देयर डेफिनेटली, राइट. तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में, इट बी कनाडा और US, द यूनिवर्सिटीज आर बाय डिफॉल्ट वेरी बिग, यू विल गेट अ जॉब इनसाइड देयर और आउटसाइड एनीवेयर, राइट. बट कॉलेजेस के पास जो स्टूडेंट डिप्लोमा करने आ रहा है कनाडा के अंदर, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ना उसको. वो एक फ्लोर के कॉलेज के अंदर कहाँ जॉब ढूंढेगा, ठीक है ना. और बाहर जाके कंपटीशन इतना है बिकॉज मेजॉरिटी बच्चा है डिप्लोमा का. डिग्री के स्टूडेंट्स, ओके, नाउ डिग्री स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट. ओके, दे नो कि वट एवर यूट्यूब पर मोस्टली शोर मचाने वाले बच्चे भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं. दे लाइक हमने अपनी इन्फॉर्मेशन ले ली, वी नो वी आर इन डिग्री, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस, यूनिवर्सिटी इज सपोर्टिंग अस, वी आर गोना बी सेटल फॉर श्योर, हमारा ROI भी बहुत अच्छा निकलेगा. वो लोग कुछ शोर भी नहीं मचाते हैं, दे आर जस्ट हैप्पी, राइट. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. अब जैसे यू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट राइट नाउ. जब आपको, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यार अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए थी, वुड यू गो एंड गेट एन एडवाइस फ्रॉम अ क्रिकेटर हाउ टू गेट अ जॉब? No, right? You wouldn't go get a advice from someone who hasn't been in your place, right? So let me put this to all the students. It's a very common sense thing actually that you need to put in. When you're going in India and getting an advice from someone, why do you get advice from people जिन्होंने खुद ने study abroad कभी किया ही नहीं है, right? इंडिया में 99% कंसल्टेंट्स, एजेंट्स आर आपके कोई लोकल के आसपास के कॉलेज के BA पास, BBA पास, राइट. जिसने खुद ने स्टडी अब्रॉड नहीं किया, वो कमीशन के चक्कर में आपको तो बेच रहा है, बट हाउ विल दे सेल यू ऑन ऑल ऑफ दैट, राइट. हाउ डू यू नो कि ये एडवाइस जेन्युइन है या नहीं? उसके लिए तो हरनूर जैसे यूट्यूबर्स हैं जो बता रहे हैं, ठीक है ना. बट you need to talk to people who have studied abroad themselves. Absolutely right. Or who live here, right? They will tell you more of a reality than anyone who is in India. Absolutely right. Now अब बात करते हैं US एंड UK की. UK की काफ़ी मतलब 60% एजेंट से आते हैं जैसे आपने बताया. तो इवन दो वो एजेंट से आते हैं, मुझे लगता है कि जैसे स्कूल्स लाइक UC Irvine, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, इवन दो एजेंट से आते हैं, पर इतना कोई स्टूडेंट कंप्लेन नहीं करता कि यार मुझे एजेंट ने भेजा था और मैं कहाँ आ गया. बहुत कम सुनने को मिलता है. कनाडा UK में ज़्यादा सुनने को मिलता है. डू यू एग्री? I mean,
हाँ, आई मीन यूके में तो पहले सच था, तभी यूके गवर्नमेंट ऑल्सो गॉट वेरी स्ट्रिक्टेड। कनाडा का भी सेम सीन होने लग शुरू हो गया था कि एजेंट मार्केट वाज लाइक ओके अब यूके यार स्ट्रिक्ट हो रहा है, हम कनाडा बच्चा भेजते हैं, एंड कनाडा गवर्नमेंट वाज लाइक डोंट प्ले विद अस, वील ऑल्सो गेट स्ट्रिक्ट, राइट? तभी हम डिग्री स्टूडेंट्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो अब एजेंट मार्केट ऑस्ट्रेलिया की तरफ दौड़ रहा है जहाँ पे उनको कमीशन बन रहा है, राइट? बट आप उनके लिए थोड़ी काम कर रहे हो, आपने एजेंट को थोड़ी पैसे बना के देने हैं, आपने तो अपना देखना है कि यू हैव टू डेली थिंक फॉरवर्ड फॉर 10 years, इवन इफ यू आर एट अ अर्ली एज। आप सी वी अंडरस्टैंड यू आर 17 years old, 18 years old, आप नहीं देख सकते अगले 10 साल आपके कैसे होंगे, राइट? नो, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी, बट यू नीड टू पुट दैट प्रेशर कि इफ आई एम पिकिंग दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, विल आई बी where I want to be, right? Absolutely right. Can you share your motivation to give students commission back? क्योंकि यार सभी लोग कहेंगे किस खुशी में धोती खोल रहा है एजेंट्स की, why you are giving back money to students instead of agents taking it? So see, at UPI study, we are an education board. We are not a consultant, right? And with the government support and with big university support like Brown University and others, we are trying to shut down the study abroad market. Let me rephrase it, not shut down the study abroad market. Study abroad market will still be there, but next 5-10 years mein all the consultancies should be shut down, right? And there should be a streamlined way of how students can go abroad. That is why abhi study abroad consultancies ka there are only two sources of income. One, the major one, which is 90% commission, okay? And then unless and until you're applying to some Ivy Leagues, they will guide you on how to apply. जो आपने बोला कि वहाँ पे भी वो गाइडेंस के लिए एक्स्ट्रा 20,000 ले लेते हैं, 30,000 ले लेते हैं. नाउ अगर कमीशन वाला बंद हो गया, दैट मीन्स ऑल द स्कैम, ऑल द रॉन्ग एडवाइस, एवरीथिंग वुड शट डाउन इमीडिएटली. इंडिया में 1.3 बिलियन population में से there is 60 to 70% youngsters, right? These youngsters are gonna come abroad for masters, bachelors or something. और कितना पोटेंशियल है इन स्टूडेंट्स का. एंड इंडियंस यार आपको हर जगह मिल जाते हैं. स्विट्ज़रलैंड के कोई रैंडम पहाड़ी पे जाओगे, आई एम प्रीटी श्योर आपको कोई ना कोई इंडियन वहाँ पे भी मिलेगा, राइट? बट सो इंडियंस आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर इट्स गोना कंटिन्यू फॉर मेनी नेक्स्ट ईयर्स, राइट? तो दैट सिस्टम हैज़ टू गॉट टू बी सेट. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि पहले हम ये मार्केट को ख़त्म करें. सेकेंड, with support of the universities and government, we set a streamline एक process कि you as a student apply directly to the university. आपको advice चाहिए, so there are non-profits which will advise you. You can, there are mentors which you can talk to, right? That's the goal of UPI study that we're trying to do. मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री ज़रूर रहेगी, किसी ना किसी को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है एट एनी पॉइंट. जैसे आप देख लो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाने के लिए पीपल पे एजेंट्स $5,000, ये कमीशन से नहीं मिल रहा हार्वर्ड से, ये एजेंट्स को खुद पे कर रहे हैं बिकॉज दे कैन प्रिपेयर. यूएस में लोग $5,000-10,000 देते हैं टू प्रिपेयर फॉर HBS, MIT, and that is separate. That can be there, right? Getting consultancy on how to apply is one thing, and not paying the consultant or paying consultant still something when they are making majority of the money on your commission is totally different. Absolutely. Right? If you yourself know I want to go to this specific Ivy League or this specific good university, then it's fine, right? Because you have, that shows you have done your research. Correct. Then you're getting the consultancies, यार ऐसे कैसे लिखूं, SAT में कितना स्कोर होना चाहिए, that is a separate job. Absolutely. Right? But commission वाला जो स्ट्रक्चर है ना, वहाँ पे बहुत घपला हो रहा है एक तरीके से. तो जैसे आपने बोला धोती खोलनी है तो खोलनी है. एंड बात किया कि हाँ लास्ट ईयर वी हेल्प 5,000 स्टूडेंट्स. हमको रिक्वेस्ट लास्ट ईयर 2 लाख स्टूडेंट्स की आई थी फ्रॉम 15 कंट्रीज. दैट इंक्लूड्स फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इवन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. 2 लाख स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी. वी कुड ओनली अप्लाई फॉर 5,000. दिस ईयर वी आर गोना डू इट डबल, 10,000 स्टूडेंट्स, राइट? नेक्स्ट ईयर वी आर गोना एम फॉर 40,000 और सो. So कंसल्टेंट उसको यही बताते हैं कि बैचलर्स की डिग्री 4 साल की है, वो आपके लिए बहुत मुश्किल है अफोर्ड करनी, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा होगी. तो बेटर है आप 2 साल के डिप्लोमा में चले जाओ किसी कॉलेज के अंदर करने के लिए. मगर उनको ये चीज नहीं बताई जाती कि वो 2 साल के डिप्लोमे के बाद उनको कितनी मुश्किलें आने वाली हैं. एक +2 वाला स्टूडेंट जब वहां पे +2 खत्म कर लेता है या वो कर रहा होता है, वो यूपीआई के इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है जो एडवांस डिप्लोमा बच्चे यहाँ पे आके 2 साल में खत्म करते हैं. वो सेम डिप्लोमा ऑनलाइन वो स्टूडेंट्स अपने होम कंट्री से 9 to 12 मंथ्स में कर लेते हैं.
And now can you tell me how do you make money if you don't take commission ही दे रहे हो? So can you tell me business model of UPS study and how you are helping students Yeah. to study abroad? Yeah. So UPS Study is not a consultancy. UPS Study is an education board in order to support international students, not specifically only from India but all around the world. Okay, so that is first thing. So जैसे इंडिया में UGC होती है वैसे यहाँ पे UPS Study board है. Okay, now UPS Study also runs its own programs and courses that students can complete. जैसे AP courses is an example, IB schools होते हैं, वैसे UPS Study के खुद के courses होते हैं जो आप लेकर आपको कॉलेज क्रेडिट्स मिल सकते हैं इन 1500 यूनिवर्सिटीज. मैं एलैबोरेट करता हूँ क्योंकि मैंने ये पूरा सिस्टम अच्छे से देखा है. क्योंकि इंडिया में देखो यार कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे आप US लेवल के कोर्सेज लेकर आप कॉलेज के कोर्सेज स्कूल में हाई स्कूल में ही कर लेते हो. Correct. और वो कोर्सेज मैंने इंडिया में इस कारण लिए थे क्योंकि मेरे स्कूल में ऑफर हो रहे थे. मेरा स्कूल उन 15 स्कूल्स में से था ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे ऑफर हो रहे थे. एंड ये हर जगह नहीं होते. आपने देखा कि यार ये Tier 3 Tier 2 सिटीज तक ये चीजें वैलिड नहीं है. कोई बंदा अगर 4 साल की डिग्री 3 साल 2 साल में करना चाहता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अचीव. एग्जैक्टली. नाउ यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम बाय गिविंग स्टूडेंट्स Yeah. घर बैठ के इंडिया बैठ के कुछ देर बैठो एंड आप कोर्सेज लो ताकि आप US UK कनाडा में जल्दी ग्रेजुएट हो. एंड एक्चुअली अभी यू हैव लिव्ड हियर फॉर मेनी ईयर्स. ये मॉडल लोकल स्टूडेंट्स के लिए तो कब से है? 20-25 साल से है. यहाँ के हाई इफ एनी ऑफ योर व्यूअर्स, आप कमेंट्स में ये प्लीज़ लिखना और बताना इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम एन अमेरिकन हाई स्कूल, राइट, यू विल सी दिस वेरी कॉमनली. तो अमेरिकन हाई स्कूल्स के अंदर क्या होता है, यू आर अलाउड टू टेक AP कोर्सेज और यू आर अलाउड टू टेक कम्युनिटी लेवल कॉलेज कोर्सेज वाइल यू आर स्टिल इन grade 12 grade 11. दैट मीन्स आप कॉलेज के कोर्सेज सेपरेटली फ्रॉम योर 12th पहले एडवांस में ख़त्म कर रहे हो. दैट विल अलाउ यू टू स्किप सम कोर्सेज एंड ग्रेजुएट फास्टर इन यूनिवर्सिटी. 4 साल की डिग्री आप 3 साल में 2.5 साल में खत्म करते हो. यू ऑल्सो फिनिश इट प्रीटी अर्ली, राइट? आई ऑल्सो डिड इट इन 3 years. 4 साल की कंप्यूटर साइंस की डिग्री 3 साल में कर ली, 1 साल का पैसा बचाया. दैट वाज मोर देन इनफ उस टाइम के लिए. विद आवर कोर्सेज स्टूडेंट्स कैन स्किप अप टू 2 years. ओके, you don't necessarily have to do it, but you can do up to 2 years. आपको 1 साल skip करना है, 1.5 करना है. It helps you save money, right? So that is our business model on how, as an education board, we make revenue in a non-profit and everything continuously. But on side, जो commission वाला part है, that is just us making sure कि students are knowledgeable about what is happening in the industry. More than students, parents are knowledgeable, right? At the end of the day, आप लोन ले रहे हो या आपके लिए कोई पे कर रहा है, राइट, इट यूजली इज योर पेरेंट्स, राइट. लोन भी लेते हो तो यार यूजली पेरेंट्स बोलते हैं हम पे बैक करना स्टार्ट करते हैं जितना भी होता है. सो एक जब स्टडी अब्रॉड करने जाते हैं ना, अनलेस एंड अनटिल यू कम फ्रॉम दैट 1% रिच फैमिली, राइट, अगर आप मिडिल क्लास से आ रहे हो तो यू विल सी पूरी फैमिली की एक एक्चुअली वो पावर लगती है फंड्स एलोकेट करने के लिए आपको बाहर पढ़ने के भेजने के लिए, राइट. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट it's done the right way, right? You have to make sure कि आपकी हर एक जो step है as careful as it can be and as right it can be, you have to get the value. जब 10 लोग आपकी फैमिली में, 4 लोग आपकी फैमिली में मिलके आपको बाहर भेज रहे हैं, right? Your parents are budget cutting here in India or while you are enjoying abroad. So if you can graduate faster, जाके फिर आपकी तरह माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लो, अमेजोन में लो, you will make 150K starting salaries, you will be more than happy. एंड हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल? आपने इतनी यूनिवर्सिटीज़ है US कनाडा UK में, आपने हर यूनिवर्सिटी से बात की कि यार हमारे कोर्सेज लेकर आपके पास बच्चा जाएगा और जल्दी ग्रेजुएट हो जाएगा. So, उनका भी तो नुकसान हो रहा है. सो यहाँ पे ना दैट्स द ब्यूटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन कनाडा. अनफॉर्चुनेटली अभी इंडिया में उतनी एडवांस नहीं हुई है. येस्टरडे व्हेन वी आर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, राधिका गुप्ता वाज आंसरिंग द सेम क्वेश्चन, राइट, कि एजुकेशन अभी इज येट टू बी मोर एडवांस इन इंडिया ऑल्सो. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे ना डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हम अप्रूवल ले लेते हैं. ओके, नाउ यू गॉट टू हैव सम ईयर्स इन द इंडस्ट्री फॉर टू शो इट. हमारे बोर्ड इज़ वेरी एक्सपीरियंस, कम्स फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेसर्स, राइट, फाउंडर्स. सो बट ईदर वेज कनाडा के अंदर वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू अप्रूवल दैट हैज़ सेट सम पार्टनरशिप्स इन सम यूनिवर्सिटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैव टू एक्सेप्ट द क्रेडिट्स. इन US वी आर एक्रेडिटेड बाय 2 bodies. दैट मीन्स उनके नेटवर्क में जो 1500 to 2000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, दैट इंक्लूड सम ऑफ द Ivy League यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, दे विल बी एक्सेप्टिंग आवर कॉलेज क्रेडिट्स. सेम गोज विद UK, सिमिलर मॉडल. नाउ प्रॉब्लम पता क्या है कि यार ये कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं. इवन दो ये
यूएस कनाडा यूके की फीस से बहुत कम है, पर बंदा सोचता है कि 40-50 हज़ार रुपये या फिर इवन 1-2 लाख रुपए क्यों दे फॉर स्टडिंग इन इंडिया, जिससे यूएस में पढ़ाई सस्ती हो। मतलब एक बहुत सी झिझक सी आती है यार कि मैं फीस वहाँ पे भी जाके दे रहा हूँ, घर बैठे भी दूँ, क्या पता बाद में हो ना हो, एक डर सा होता है। देखो होगा वो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ही गारंटी करके आपको सर्टिफिकेट के अंदर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का सील है, ऑर्गेनाइजेशन का सील है, जहाँ से हमें क्रेडिट हुए कि यू विल गेट द क्रेडिट्स। अब जो झझक है कि मेरे को थोड़े से पैसे अभी इंडिया में रह के बचाने हैं, अगर आपके पास पैसे हैं कि मैं 40,000 के 40 लाख एक साल का एक्स्ट्रा दे सकता हूँ तो आप दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? वाई विल वी हैव अ प्रॉब्लम? आर गोल अगेन, वी आर अ बोर्ड, वी आर सपोज टू हेल्प यू आउट, वी आर मेकिंग, आर गोल इज टू make education more accessible to students. We are doing it via the study abroad space. There are some other organizations which is doing it by opening organizations in Africa. हर organization अपने हिसाब से काम करती है. Our goal is to bring education accessible via study abroad space. That is how we are doing it. If you think you cannot afford it, if you then you come to us. We will help you out. If you think you can afford it, no need to come to us, right? Go do it, finish it normally. But sometimes students also don't like to spend full 4 years. They get bored. They're like, हो गया यार 3 साल से यहीं पे बैठे हैं, ठीक है ना, जल्दी ख़त्म करना है. So they can do the courses while they are in university as well. Actually, you will certainly not get full 60 credits, but you will get some credits जिससे आप जल्दी ख़त्म कर सकते हो. और क्या गारंटी है, अगर इमेजिन करो किसी ने आपका कोर्स लिया, बाद में कहीं पे एडमिशन नहीं हुई, क्या आप पैसा रिफंड करोगे? हाँ, it's in writing, yeah. Oh. Yeah, so I'll tell you something. When you pay us, 50% of the funds are on hold by the government. Okay, that by the time the student finishes the course या आगे नहीं जाता, ट्रांसफ़र नहीं होते, they don't release it to us. Okay, so अगर आप किक नहीं हुए, it says on our website, it says on the each student contract, whenever you register for a course, you will get your money back if they do not transfer. But touch wood, till now all the students, हमारे प्लेटफॉर्म पे 97,000 students signed up हैं, and all the students who have done these courses, there is a 100% success rate. Wow. Not even a single student out there जिसको credits ना मिले हो. क्या बात है. और अब बारी मास्टर स्टूडेंट्स की. अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जल्दी ग्रेजुएट हो सकते हैं, मास्टर स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है? यार मास्टर्स के लिए ना, अगेन देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड पाथवे प्रोग्राम कि आप 1 साल इंडिया में स्पेंड कर लो, 1 साल बाहर स्पेंड कर लो. वी डोंट ऑफर दैट, बट आप वो देख सकते हो. अदर देन दैट, मास्टर्स के लिए ना एक मेन प्रॉब्लम ये है, इंडिया में जिसने इंजीनियरिंग नहीं की है, बीबीए की है, बीकॉम की है, बीए की है, ये इन लोगों के पास 3 years की डिग्री होती है. एंड यूएस एंड कनाडा में बैचलर्स इज़ 120 credits विच इज़ इक्वल टू 4 years इवन इफ़ यू फिनिश इट इन 3 years. तो 3 साल की डिग्री से आने के लिए यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर मास्टर्स. इसी को यूज़ करके मेजॉरिटी एजेंट बच्चे को पीजी डिप्लोमा में भेजते हैं, नॉट फॉर मास्टर्स डिग्री. बट देयर इज़ अ लूप अराउंड इट. दैट लूप इज़ कि आप इंडिया के अंदर या यूपीआई के थ्रू भी यू कैन टेक some courses that will or you can do a short certificate diploma course type. इंडिया के अंदर आपको यूनिवर्सिटी से कर लो या यूपीआई के थ्रू कर लो. यूपीआई के थ्रू it's 6 months, right? But that will add as your 4th year of education. With us, we have some partner universities which will waive GRE, GMAT for you as well, and then you can go finish your masters normally. वाओ. तो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी यूज करता है यूपीआई स्टडी प्लेटफॉर्म, इट इज फॉर एवरीवन. किसी ना किसी तरीके से यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, चाहे वो जल्दी ग्रेजुएट होना हो, चाहे वो कमीशन जेब में डालनी हो. द गोल इज नॉट टू मेक मनी, द गोल इज टू प्रोवाइड वैल्यू. वाओ. या मतलब यहाँ पे वो सिस्टम है ही नहीं, राइट? यू आस्क मी अबाउट मनी. We are getting funds from government, right? We are an education board. We apply for funds, we get it allocated होते हैं, right? We are registered in US, we are registered in Canada. We don't have problem with it. Right now in the office of UPS study that we're speaking, this is actually Brown University's owned office, but उन्होंने हमको allocate किया हुआ है, right? Funds के through. So again, आप अभी हम UPI has 4 offices. This office is Rhode Island के अंदर office. I was just telling her Noor कि this is also funded by Brown and Rhode Island State, right? RIHUB के through. So again, this is like, that is why we have the funds. We have no problem there. Yeah. Very well said. It was very informative, Manit. Thank you so much for sharing value. And those who still want to check out Study Abroad, go check out UPI Study in the links in description below.
See you guys. Bye. Yeah, आप सीधा WhatsApp पे मैसेज कर सकते हो with the links in description though. Yeah, WhatsApp, you schedule a call with us, you can visit our website, anything you want. It's completely free.